right? So we are supposed to implement the static CMOS logic design for the SR latch. Now to draw this, what it says is, so we'll draw two NOR gates. So to draw the two NOR gates, what we are supposed to do? Let's first draw the first NOR gate. So first NOR gate will be like, Sumit, can you please turn on the charger? So first NOR gate. So NOR gate says is, okay, y is equal to a plus b bar. Okay guys, actually my electricity is gone, so I won't be able to carry the class for long. So let's see कितना हो पाता है, जितनी देर चलेगी, we'll see, right? So a plus y is equal to a plus b bar, right? So to implement this, we'll use simple static logic that we use, right? So a plus b, for p MOS a plus b implement करने के लिए क्या करेंगे बेटा? We'll use one MOS in series with another MOS. So let's say this is my first MOS A. Sorry, we don't give it a name because we'll be giving different names here, right? So this is B, and then this comes down, and then I connect to NMOS here. Now to draw the NMOS, I have connected this, and I have connected this as the another transistor, right? And then these two are connected to the ground terminal. So this is VDD, this is ground. So this is my one NOR gate, right? So this is one NOR gate. Let's draw another NOR gate as well. So we'll draw it here. So this is for A plus B, right? And then we draw the N network, which is your parallel connection. So A plus B gives you the parallel connection of transistors. So this is your A, and this is your B, and then these two are connected to the ground, right? And here you take your output of the first node, and here you take the output of the second node. Now you see the combination. Now you see this circuit, and you have to connect it like this. So this is one NOR gate, this is second NOR gate. So this is one NOR gate, this is second NOR gate. Now in the two NOR gates, you have to make connections. So make connection in such a manner that it connects the whole circuit, right? So you can see that the output of first node is connected to the input of the first, right? So what you can do is, you can take this as one input, right? And this will be connected here, and this output will go to this one. So you can take this, and this will come here, right? So this is one connection that you've made. So this is one, and then so these are interconnected outputs. Now you have your S and R. So this, let's say this is your S input, and this is your R input, right? And this is your VDD, and this is your GND, right? And since the output of second NOR is Q, so this will represent your Q, and this will represent your Q bar. So this completes the implementation of static logic implementation of this SR latch. So this is what is you're supposed to do with the other logics. SR latch मैंने बता दिया बेटा. Now you're supposed to implement the SR flip flop.
सो फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, इन एसआर फ्लिप फ्लॉप, रोहित वांट्स टू जॉइन। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? सो फ्लिप फ्लॉप में कुछ अलग नहीं होता। लेट्स से दिस इज योर एसआर लैच। एसआर लैच के अंदर अगर आप क्लॉक लगा दोगे, क्लॉक लगाने के लिए क्या करोगे, यू विल टेक अ एंड गेट, यू विल टेक अनदर एंड गेट, इसमें एक इनपुट तो आपकी हो जाएगी एस, एक इनपुट हो जाएगी आर, और ये दोनों की दूसरी इनपुट है, ये क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट द cloak, right? So this will behave as your cloak, right? So this gives you, or this complete circuit gives you your SR flip flop, right? So this is your SR flip flop. Similarly, you are supposed to implement the JK flip flop. यही implementation करके दिखाना है, SR flip flop का, JK flip flop का, then D flip flop का, and then T flip flop का। तो ये चारों का आपने स्टैटिक सीमोस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करना है बेटा खुद से। और लेट मी चेक इसमें कुछ और टॉपिक अगर रह जाता है तो। हाँ, इसके बाद इसमें दो चीजें और बचती है, एक आपका बचता है श्मिट ट्रिगर, एंड एक आपका बस यही बचता है आपका, यू इंप्लीमेंट दिस। सो यू हैव टू इंप्लीमेंट, वन इज दिस, 2, 3, 4 एंड, तो ये 5 सर्किट इज योर पार्ट ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। सो दिस इज योर अनदर असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू implement sequential circuits using complex logic design, right? ये यूज करके आपने इंप्लीमेंट करने हैं, और इसमें कौन कौन से, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। आई होप ये सारे आपने पढ़े हैं डिजिटल में, सो यू कैन डू इट इजीली। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, टी फ्लिप फ्लॉप एंड देन योर श्मिट ट्रिगर, right? So this is your assignment number 4, and इसके लिए मैं तुम्हें कितने दिन का टाइम दूं? So today is 29th. I guess 4 days time would be sufficient. सर मंडे तक। मंडे, आज कितनी है, एक मिनट, 29, मंडे मीन्स मंडे इज 4th of May. You want it to be till 4th of May? Is it okay with everyone? Write okay in the chat box if 4th May is okay for everyone. Good. So the deadline for this assignment, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा वहाँ पे आपके पोर्टल पे, and you have to upload it there. So assignment 4 is for due till 4th May, right? तो ये तो बेटा यहाँ तक की कहानी होगी। इसमें जब इसको करोगे, सो याद रखना कि ये डायग्राम तो आपने ड्रॉ करना ही करना है जो हमने बनाया है। इस डायग्राम के साथ साथ यू आर सपोज टू ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म। लेट मी शो एन एग्जांपल। मैं एक बार दिखाता हूँ। Yes, so you're supposed to draw the output waveform something like this, right? So ये वेवफॉर्म आपने ड्रॉ करनी है जिसमें आप पहले क्लॉक लोगे, फिर एस आर एंड आउटपुट। सो इस तरह से वेवफॉर्म, और जो आप लैब के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें दिस विल बी वन एक्सपेरिमेंट। या आप एक काम करो, आप इसको असाइनमेंट 4 लेने की बजाय यू टेक इट एज अ प्रैक्टिकल, ठीक है जी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। चाहे तो आप इसको असाइनमेंट में ले लो, चाहे तो आप इसको लैब प्रैक्टिकल में ले लो, बट यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दीज सर्किट्स यूजिंग स्टैटिक सीमोस लॉजिक डिजाइन, एंड इनका ये आउटपुट ड्रॉ करना है। तो आप चाहे तो इसको जो आपका टूल है उससे परफॉर्म कर लो, उससे नहीं करना तो खुद से करो, लेकिन करना पड़ेगा। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो इसको खुद से करें, और जिनके पास लैपटॉप है दे कैन डू इट यूजिंग द, वो आपका जो टूल है क्या बोलते हैं,
एल्टी स्पाइस, तो जो एल्टी स्पाइस में करना चाहे उससे कर ले, और जो एल्टी स्पाइस से नहीं कर सकते वो लोग कॉपी में करके उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे, ठीक है। So I guess this completes your third unit as well, right? So this topic completes your third unit. Now we are left with the fourth unit only, in which we'll study the memories and interconnects. So this I'll probably finish in 2 more classes. So अगली क्लास हम रख लेंगे, अभी आज वेडनेसडे है तो थर्सडे फ्राइडे, विल कीप इट ऑन सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सैटरडे में शेड्यूल करते हैं और उसमें विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फोर्थ यूनिट, एंड देन विल टेक अनदर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो कैन आस्क। If it is clear to all, please write C in the chat box. अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है, प्लीज राइट C in the chat box. ओके, ऑलमोस्ट सभी ने सी लिखा है। जिन्हें एक दो को अगर किसी को डाउट है तो बेटा वो पिंग कर लेना मुझे पर्सनली, ठीक है। आई शेयर सम कंटेंट विद यू गाइस ऑन द पोर्टल। मैं इसको इसका कंटेंट, इसका जो रीडिंग कंटेंट है वो मैं आपके पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से रेफर कर लेना आप लोग इसको। अभी क्लास के तुरंत बाद मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो कल आप एक्सेस कर पाओगे इसको, ठीक। एंड देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लाइक असाइनमेंट जो दिया था लास्ट थर्ड, जिसमें 3 न्यूमेरिकल थे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई, यू गाइस कैन टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक इफ यू वांट टू, किसी को कोई कुछ बात करनी है तो। सर थर्ड वाले में आई थी। थर्ड वाले में आई थी, क्या प्रॉब्लम आई उसमें? सर जो मतलब नई जो बुक है उसमें डिप्लीशन मोड वाला नहीं दे रखा, उसमें सूडो एनमॉस सूडो मोड दे रखा है। हाँ, तो दोनों सूडो सेम एनमॉस है? है। नहीं, दोनों सेम सर नहीं है। डिप्लीशन, तो सर डिप्लीशन का कहाँ से रेफर? डिप्लीशन का कहाँ से आएगा? कैंग में नहीं है डिप्लीशन का। आई गेस कैंग में है बेटा सर के डिप्लीशन का। सर नए वाले उसमें तो नहीं जो मिला लाइब्रेरी से सर। इशू करा रखी है। यस सर, 4th एडिशन है। अच्छा, उसमें नहीं है। सो आई सी, मैं ढूंढता हूँ अगर मेरे पास, मैं एक्चुअली मेरी भी बुक बेटा कॉलेजेस में ही पढ़ी है, सारी कॉलेज में ही है मेरी सारी बुक्स, तो मैं सर्च करके कुछ कंटेंट तुम लोगों को शेयर करूंगा श्योरली। यस सर, थैंक यू सर। और जैसे ही मेरे को कुछ, मैं आज कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करने का। बाकी उसके अलावा अगर कोई बात है तो वो बताना मुझे आप लोग, ठीक है। सिलेबस 70% लगभग कंप्लीट हो गया, 75%। जो एक यूनिट बची है उसको भी मैं 2 क्लास में कंप्लीट कर लूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ा जो सर ने शेयर किया है, प्रवीण सर ने जो ग्रुप यस पे, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ग्रुप पे शेयर किया है। Yes, सर, sir. 15th मई तक एक्सटेंड हो गया है। 30 मई तक नहीं है बेटा, 15 मई तक है। 15 ही का है सर, 15। अच्छा हाँ, 15 मई तक एक्सटेंडेड है। तो 15 मई के बाद ये मान के चलो आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके आने का मतलब ये नहीं है कि सेशन 15 मई तक एक्सटेंड हुआ है, उसके आने का मतलब ये है कि 15 मई सेशन खत्म हो रहा है, मतलब 15 मई से एग्जाम शुरू, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप लोगों को लग रहा है ना कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हैंड्स ऑन ना करवा के सिर्फ वाइवा पे नंबर दे दें, जो कि जूम के या स्काइप के थ्रू ले लिया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्यूज होगा आप लोगों के पास, तो इसलिए बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एवरी सब्जेक्ट। सिर्फ मेरे का नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बोल रहा हूँ। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। एग्जाम किसी भी बोर्ड में हो सकता है, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी एमसीक्यूज, और इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव एज वेल, और इट कैन बी सिंपली वाइवा वॉइस। तो इट डिपेंड्स कि क्या डिसीजन लेगी यूनिवर्सिटी। बट यस, एमएचआरडी से कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं जिस पे यूनिवर्सिटी अभी चिंतन मंथन कर रही है। तो बहुत जल्दी आप लोग के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो 15 दिन है, पुट योर ऑल एफर्ट्स इनटू योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन एंड गो फॉर इट। किसी बच्चे को कोई और बात करनी है तो बताए। कमलाल सन, आर यू देयर इन द क्लास? कमलाल सन, Yes, sir. you couldn't go your home? Kamalal San, you couldn't go your home?
Maybe I will go tomorrow. this Okay, week, right now maybe. you are in Delhi only. Yes. I hope you are well, beta. You are not facing any issue. If there is an issue, please let me know and ping me on my personal number, right? Okay, sir. Okay. किसी और बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बताए बेटा. Then we'll close the class for today. सर आपने कहा था कि प्रैक्टिकल के लिए ऑनलाइन कुछ रेफर करोगे. यार मिला नहीं कुछ, वरना मैं जरूर कर चुका होता. सर तो मैं किसी से वीडियो लेके और फिर उसी से प्रैक्टिकल बनवा लूं. वीडियो मतलब कि लेके किस प्रैक्टिकल चीज का की भी वीडियो? सर की वो प्रैक्टिकल कर देगा, मैंने वीडियो बताया भेज था देगा बेटा, मुझे. जैसे आप फ्रेंड्स में ना, आप लोगों के पास लैपटॉप जिनके पास है, व्हाट दे कैन डू इज, फोन पे एक ऐप होती है टीम व्यूअर. ठीक है, तो अपने फोन में वो ऐप डाल लो और जिसका लैपटॉप एक्सेस करना है उसके लैपटॉप में टीम व्यूअर डाल लो. ठीक है, तो टीम व्यूअर से आप उसका लैपटॉप एक्सेस करके उसके लैपटॉप पे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख सकते हो. ओके सर. ठीक है, सो हैव अ, मतलब अगर पॉसिबल, व्हाई नॉट टू ट्राई न्यू थिंग्स. कुछ सीखने को ही मिलेगा ना. मैं नहीं कहता प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, बट कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है ना. सो ओके यू कैन ट्राई दैट मेथड. टीम व्यूअर इज द थिंग. अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो मेरे साथ भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, बाकी ओके कुछ सर. जैसी कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन मिलेगा आई शेयर इट विद यू गाइस. अभी मैंने सर्च किया था, मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा. राइट बेटा, थैंक यू असाइनमेंट सर. सीरियसली कंप्लीट करके 4th में तक इसको अपलोड करो. और मैं कोशिश करता हूँ कि 4th में तक आपका बचा हुआ सिलेबस भी 5th में तक खत्म हो जाए. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय. बाय सर.